Hello students, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to continue with the chapter Environment and Sustainable Development of unit number 3rd of class 11th Economics, Indian Economic Development. In the last video, we are done with the topics like that what is the state of India's environment, what is the topic ozone depletion, then the natural resources in India, in which we taught about I taught you about the basic resources, the natural resources which India have, and till now जो भी हमने डिस्कवर किया है इंडिया में इसके बारे में हमने बात करी थी. Then the last topic we studied that was the threat to India's environment or the environmental degradation. So India में environment से related क्या थ्रेट है? सबसे बड़ा थ्रेट, इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, then you must be aware about the biggest threat which India is facing, that is the pollution, especially the air pollution. So the topic was like the threat to India's environment possesses a dichotomy: threat of poverty, induced environmental degradation, and at the same time threat of pollution from effluents and a rapidly growing industrial sector. Air pollution, water contamination, soil erosion, deforestation, and wildlife extinction are some of the most pressing environmental concerns of India. The priority issues identified are the land degradation, biodiversity loss, air pollution, with special reference to vehicular pollution. We know that in urban areas the vehicular pollution is really very high. We all are suffering from this, but until unless we don't find any strong solution, which must be any public conveyance or maybe carpooling or something like that, but till that point, until we find any good solution for that, till that we have to wait and we have to suffer. Then management of fresh water is still a very big issue, one of the very big issue that especially in the rural areas or in the private colonies, still fresh water is not accessible. The management of fresh water is really very weak. And yes, the last point, a very, very big issue, that is the solid waste management. A very big issue, like as I told you this in the last video, that especially if you belong to Delhi, then there are two big artificial hills of solid waste in Delhi, and so many little hills in so many different places of solid waste. And this is a big failure of the Indian system, that we don't have any good technology which can dissolve, which can absorb that solid waste. So still we have to find a good solution to manage the solid waste. So still a very big issue. Now let us come to the next topic, the environment degradation. Now, what is the simple meaning of environment degradation? This means the degradation of the quality of environment, of biotic and abiotic elements. Now, when there is the fall in the quality of such elements, this is the simple case of environment degradation. That somehow the quality has been decreased, and most probably the reason is actually man-made. Because of the action taken by humans on earth, we are facing the problem of environment degradation. Now let's talk about its simple definition. Environment degradation refers to quantitative and qualitative loss to the natural resources in the course of production and consumption activities.
So whenever there is a loss to the natural resources, or we can say fall in their quality, may lead to the environment degradation. It refers to the following challenges to the country's environment. So the basic challenges to us are pollution, degradation of natural resources. Of course, pollution is one of the very big outcome of the environment degradation. Similarly, degradation of natural resources, that is deforestation and the land degradation. So we know this thing that because of urbanization, deforestation is a very big issue now. हम सिर्फ पेड़ काट रहे हैं नए शहरों को बसाने के लिए, लेकिन उतने फॉरेस्ट्रेशन पर हम ध्यान नहीं दे रहे, उतना प्लांटेशन पर हम ध्यान नहीं दे रहे. तो जिसकी वजह से अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वो इसी का एक बहुत बड़ा आउटकम है, दैट इज द बायोडायवर्सिटी लॉस. कि जो बायोडायवर्सिटी है उसमें आपको बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी. बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है वो खराब हो रहा है. देन मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉलिड वेस्ट. कि जो फ्रेश वाटर है उसकी मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है. पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है और उसके कंपैरिजन में जो ड्रिंकेबल वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत कम है. सिमिलरली उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन का जो सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है. कूड़े के भाई पहाड़ बनते जा रहे हैं. हम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों पर ज्यादा मूव ऑन कर चुके हैं, जिसको डिस्पोज करना, डिकम्पोज करना या रिसाइकल करना या तो इम्पॉसिबल है या बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या बहुत टाइम टेकिंग है. लाइक वी ऑल नो दिस थिंग कि पॉलीबैग्स को अर्थ डिकम्पोज नहीं कर सकता. तो ये वाली चीज के अगेंस्ट में एक्शन अभी तक स्ट्रिक्टली या तो लिया जा चुका होता या फिर आज से बहुत 10, 12, 15, 20 साल पहले ही इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाना चाहिए था. तो शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत बेटर होती, या जो इश्यूज सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड हमें आज देखने को मिल रहे हैं शायद वो ना होते. सो नेक्स्ट इज पॉल्यूशन. वी ऑल नो दैट हाउ बिग इश्यू इज दिस, what are the causes of pollution, what are the outcomes of pollution. We all are aware about that because we are currently facing this as one of the biggest issue, pollution. So let's talk about it further. It refers to those chemicals, substances which contaminate the environment, जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को कॉन्टामिनेट कर रहा है, मतलब कि उसमें मिलके एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, एनवायरमेंट को स्पॉइल कर रहा है. द प्रेजेंस ऑफ दीज contaminants cause negative impact on natural quality of environment. तो ये चीजें एनवायरमेंट के साथ मिलके एनवायरमेंट की जो नेचुरल क्वालिटी है उसको स्पॉइल कर रहा है, और वही चीज पॉल्यूशन क्रिएट करती है. दीज कॉन्टामिनेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोडक्शन and consumption activities of agriculture, industries, households, vehicles, natural processes like soil erosion, etc. तो
जब इन कॉन्टामिनेंट्स के ओरिजिन की बात आती है तो ये ओरिजिन होता कहां से है? ये हमारी आपकी जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज डेली बेसिस पे चल रही हैं, उसी के आउटकम से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और नॉर्मल हाउस होल्ड, नॉर्मल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, नॉर्मल डे टू डे जो आपका व्हीकल का यूज है, या दूसरी कुछ नेचुरल प्रोसेसेस लाइक आपके किसी फॉरेस्ट में फायर, नेचुरल फायर लग जाना या फ्लड आ जाना, ये अपने आप में छोटा मोटा डैमेज करता रहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें नेचुरल है। जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, अगर वो आज होती हैं तो वो आज से हजारों साल पहले भी होती थी। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल थी। तो नेचुरल से जितना भी पॉल्यूशन होता है या जो भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, एनवायरमेंट के पास उसकी भरपाई करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए सॉल्यूशन है। लेकिन जो उस नेचुरल प्रोसेस से ज्यादा वॉल्यूम का पॉल्यूशन है या वॉल्यूम का डैमेज है, उसका सॉल्यूशन शायद एनवायरमेंट के पास खुद नहीं है। अब ये जो एक्स्ट्रा पॉल्यूशन है या एक्स्ट्रा डैमेज है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है ह्यूमंस की कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो या तो हमको अपनी इन एक्टिविटीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बन जाए और एनवायरमेंट को मिनिमम डैमेज हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो, ताकि आपकी डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। अगर हम इस वे में नहीं सोचेंगे और जिस स्पीड से हम आज की डेट में रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर वो करते रहे, तो शायद हमें जो हमारा आसपास का एक फील्ड एनवायरनमेंट है, वो बड़ा स्पॉइल्ड एनवायरनमेंट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। सो लेट्स बैक टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉलोइंग 3 टाइप्स। पहला एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन और तीसरा नॉइज पॉल्यूशन। आई गेस आप सभी ने अपनी क्लास 9th या 10th की साइंस में इन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बहुत डीप स्टडी की हुई है। और आई गेस कि मेरे को शायद उतना डीपली इनका कंसेप्ट ना समझाना पड़े, लेकिन अगर हम इसे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो कुछ तो एडिशनल होगा। अब ये एडिशनल क्या है? वो है स्टैट्स, डेटा, कि एयर पॉल्यूशन की क्या आज की डेट में स्टेट है इंडियन इकोनॉमी में। सो लेट अस स्टार्ट with the definition of air pollution. Air pollution means presence of air pollutants in the air which are harmful to human beings, animals and the whole vegetation. तो एयर पॉल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है कि एयर में कुछ पॉल्यूटेंट्स का होना जो एयर की उस क्वालिटी को ऐसे स्पॉइल कर रहा है कि वो हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और जो पूरे एनवायरनमेंट में वेजिटेशन है उन सब के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ के जा रहा है। लाइक हम सिंपल इंडिया में एक स्टैट्स, एक सिंपल डाटा हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के अंदर एक दिन बिताने का मतलब यह है कि आपने ऑलमोस्ट 2.5 सिगरेट्स स्मोक करी हैं, अगर आप सिर्फ दिल्ली में ब्रीथ कर रहे हैं तो, एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स इन ऑर्डर टू कॉज सम पॉल्यूशन, यू आर जस्ट ब्रीदिंग।
Now this thing is presenting that yes, there is a very high quantity of air pollutants in the air of the Delhi. So this is the thing. Now air pollutants refer to any solid, liquid or gaseous substances which pollute oxygen, which we take, we inhale, the essential element of life. It causes health problems and damages the quality of environment. So हेल्थ प्रॉब्लम्स कितने होते हैं एयर पॉल्यूशन से? आई गेस मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. जो डैमेज है वो कितना ज्यादा बड़ा होता है एयर पॉल्यूशन से, वो भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एनवायरमेंट की क्वालिटी इससे स्पॉइल होती है. अगर एनवायरमेंट की क्वालिटी स्पॉइल होगी तो ना सिर्फ हम, जितने भी बायोटिक एलिमेंट्स हैं इस पूरे अर्थ पे, उन सभी को अफेक्ट करेगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द causes of increasing air pollution are rapid industrialization, urbanization, thermal power plants, and increase in the number of motor vehicles. Now what does it means? Industrialization मतलब कि आप अगर अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज में जब प्रोडक्शन प्रोसेस होती है तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस फर्दर पॉल्यूशन क्रिएट करती है. आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी मिल्स से बहुत सारा धुआं निकलता है. बड़ी बड़ी पेट्रोकेमिकल्स या नॉर्मल केमिकल फैक्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत सारा पॉइजनस केमिकल एमिट करती हैं पानी में, वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है. अर्बनाइजेशन की हम यहां पे बात कर रहे हैं, शहरीकरण, मतलब कि डिफॉरेस्ट्रेशन करके हमने अर्बनाइज किया, पेड़ काट के हमने वहां पे घर बना दिए, अल्टीमेटली नुकसान तो हमारा ही है उससे. देन थर्मल पावर प्लांट्स, वो भी अपने आप में बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं क्योंकि वहां पर हम कोल का इस्तेमाल करते हैं. तो जैसे पुराने कोल के इंजन्स होते थे वो कितना सारा धुआं छोड़ते थे, ऐसी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वो धुआं छोड़ते हैं. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स, वी ऑल नो दिस थिंग दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन is emitted by the vehicles these days. So that's a really very big issue. Third point, vehicular emission are of particular concern since these are ground level sources and thus have the maximum impact on general population. So इस vehicular emission का जनरल पॉपुलेशन पर किस कदर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो अगेन स्पेशली दिल्ली में, मुंबई में रहने वाले लोगों को बहुत अच्छे से फील भी होता है और बहुत अच्छे से उन्हें उसके बारे में नॉलेज भी है. द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स has increased from about 3 lakh in 1951 to nearly 14 crore in 2011. That's a very huge increment. So personal transport vehicles constitute about 80% of the total number of registered vehicles, contributing significantly to the total air pollution load. So जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है
यानी कि लोगों के अपने पर्सनल व्हीकल्स, वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है. Thus, there are three major sources of air pollution. पहला, smoke emitted by industries due to use of fossil fuels. So, जो जितने भी fossil fuels इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में, उसकी वजह से जो स्मोक एयर में जा रहा है वो एयर पोल्यूशन कर रहा है. दूसरा, व्हीकुलर एमिशन. ये क्या था? जो व्हीकल्स पोल्यूशन एमिट करते हैं ड्यू टू यूज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स. देन स्मोक एमिटेड बाय द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी in rural areas due to the use of biofuels such as cow dung, wood, etc. If you guys are aware of this thing, that especially in those areas where LPG cylinders are still a very far dream for people, they use firewood in order to cook food on daily basis. Now that firewood emit a lot of pollution. Similarly, when we burn cow dung, it emits a lot of pollution. So when it comes to the use of anything to create energy, especially in rural areas, it is more often a thing which is creating a lot of pollution. Next, air pollution causes various diseases like asthma, hypertension, respiratory problems, etc. So anything which is associated with our breathing, that may be badly hurt because of the air pollution. Now let's talk about the water pollution now. Water pollution. Water pollution means presence of water pollutants in the water which are harmful for the quality of water and which affect adversely the aquatic ecosystem. So same thing as we studied in the air pollution, when some sort of water pollutants are there in the water, may decrease the quality of water and which affect adversely the aquatic ecosystem, the whole ecosystem of water. Water pollutants refers to some biological, organic, inorganic, physical, foreign substances in the water which degrade the quality of water. Now, anything which is emitted by us, the humans, especially humans, is rapidly decreasing the quality of water. Like we all know this thing, that at what extent the rivers, and I should use the word holy rivers in India, at what pace they are decreasing their pureness, their purity, the level of quality of water they used to have. Like if I talk about the Ganges, popularly known as Ganga in India, the quality of that river
is depriving, is decreasing. That's a really very big concern. Not for only us, not only for the society, but for the whole India. The causes of increasing water pollution are rapid industrialization. Again, a lot of big industries, they used to emit a lot of poisonous chemicals, some plastic materials in the rivers, in the lakes, in the ponds. Thermal power plants, it also damages the quality of water. Then untreated sewage. You must know this thing that there is a sewage treatment plant in almost every another big city where the sewage water gets treated, where the sewage water is, you can say, cleaned by the big machineries, by the chemicals, and then that water is reused by the water board commission of that particular state or that particular city. Then major concern is rapid growth of water polluting industries. Like textiles, they pollute a lot of water bodies. Pharmaceuticals means the companies which produce medicines. Chemicals, refineries, plastic industries, etc. So they damage a lot of water bodies. They damage a lot of rivers. So which is not a good thing for the humanity and for the whole society. Soil erosion, that is decay of organic matter, agriculture waste, materials contaminate water to a large extent. So when soil erosion happens, when the agriculture waste mixed up with the water, it contaminates water, it decreases the quality of water. Thus, the major source of water pollution are: number one, domestic sewage, the sewage system; agriculture waste material, which somehow mixed up with the water; and industrial waste, so the waste of the industries. Water, being very basic element of life, if polluted, creates a lot of health problems like hepatitis, diarrhea, etc. So we all know this thing, that how much water is essential, and if we drink the contaminated water, and how much it can damage not only the human body but also the animals and plants as well. Next is noise pollution. Now what is this noise pollution? Noise pollution means discomfort and irritation caused by unwanted sound. It badly damages the health. When we hear the voice which is irritating us, which leads to discomfort. Noise created by by the loudspeakers, Now, noise created by loudspeakers, vehicles, animals, machines cause noise pollution. Noise pollution creates irritation and unpleasantness because it basically disturbs the peace. Thus, the major source of noise pollution are sound produced by heavy machineries. That is why
there are separate industrial areas, especially in the urban areas. You may have heard about the different industrial areas in which there are no residential space is there, only for the commercial activities. Sound produced by automobiles, sound produced by explosive firecrackers, loudspeakers, etc. So that's a very big issue in the metropolitan city. The voice created by automobiles, loudspeakers and all. Sound produced by street noises. So a lot of street noise, horns and all. Then sound produced by nature like wind, ocean, etc. And I don't think it's a very big issue. Even I think that the sound of wind and oceans are pleasant enough. But still, the excess of that is of course not good. Now, noise pollution creates mental problems like irritation, discomfort, anger, etc. And health problems like sleeplessness, hearing problems, increase in stress level, etc. So this is for sure that yes, noise pollution can damage a lot, can damage your health, your sleep, your hearing capacity, can increase your stress level. It can deeply hurt. Now let's talk about the degradation of natural resources. The next topic. The degradation of natural resources is a great danger to the production capacity and economic development of the country. This problem manifests itself in two forms. So degradation is basically categorized into two forms. First is deforestation. I would say the basic cause, the core cause behind every another problem. Land degradation, when the quality of land decreases. So let's start with the deforestation. Deforestation is a continuous and substantial decrease in forest areas. So when the proportion of this forest areas decreases, this is simply deforestation. Forest cover indicates the quality of land because the roots of trees, plants, they also inject a lot of nutrition in the soil. They are not only taking the minerals, they are also injecting the minerals. They basically keep the land, पकड़ के रखते हैं वो बिल्कुल, ताकि सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम ना आए. और जहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां पर आपको सॉइल इरोजन भी बहुत देखने को मिलेगा. मिट्टी बहुत ज्यादा वहां की ढीली होगी, जैसे डेजर्ट्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है. इफ देयर इज लॉस टू फॉरेस्ट कवर, it fails to act as a good indicator of quality of land. It fails. So yes, deforestation leads to fall in the quality of land. Deforestation occurred before independence. But after independence, there is a great loss caused to forest cover. It is because of what? Cutting trees to meet the need of raw material of growing industrialization.
मींस इंडिपेंडेंस से पहले भी डिफॉरेस्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से और दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी हो गई और लगातार पेड़ों का कटना अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई, जिसका आउटकम हम आज की डेट में देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, टाउनशिप्स फॉर ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, ड्यू टू विच trees are cut and forest cover is reducing in the size. तो इन सारी प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स की वजह से, रोड्स की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, नए नए टाउनशिप्स बनने की वजह से पेड़ों को काटा जाता है और जिससे अल्टीमेटली हमारा पूरा एनवायरमेंट स्पॉइल हो रहा है। एट प्रेजेंट फॉरेस्ट ऑक्यूपाई less than 22% of total land areas, less than 22%, which is much less than required. So जितना हमारे पास फॉरेस्ट का लैंड होना चाहिए था, जिस पर एक्चुअली फॉरेस्ट होना चाहिए था, वो बहुत कम है इस बढ़ती पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। The consequence of deforestation are, क्या उसके नेगेटिव्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पहला, नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट लाइफ। तो वही चीज कि अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जंगल को खत्म करेंगे, तो जो वाइल्ड लाइफ है वो कहां सस्टेन करेगी। अगर आपने जंगलों को काट के अपने घर बना लिए तो जंगल में रहने वाले कहां बनेंगे, वो कहां अपना घर बनाएंगे। एंड अल्टीमेटली द प्लांट लाइफ, अगर वहां पर वाइल्ड लाइफ खराब हो रही है तो प्लांट लाइफ भी खराब हो रही है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यहां पर पड़ रहा है। डेटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है डिफॉरेस्टेशन से। देन हार्म टू द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इससे पूरी तरीके से स्पॉइल हो रहा है और हम उस चीज के लिए, उस चीज को बचाने के लिए चाह के भी कोई मेजर स्टेप्स नहीं ले सकते, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। उस बढ़ती पॉपुलेशन को रहने के लिए आपको जगह देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट दे हैव टू टर्न ऑन देयर थिंक टैंक in order to find some good solutions. So the next is the biodiversity loss. So biodiversity का बहुत बड़ा घाटा हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारी स्पीशीज जो पहले कभी हुआ करती थी आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या बिल्कुल एक्सटिंक्शन के एज पे हैं। The high density of population, livestock and the competing uses of land for agriculture, forestry, human settlements, industries, etc. exert an enormous pressure on the country's finite resources. कि ये जो बढ़ती पॉपुलेशन है ये आपकी कंट्री में अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है कि रिसोर्सेज इतने और पॉपुलेशन इतनी, तो उन थोड़ी सी पॉपुलेशन उन थोड़ी सी रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर कितना पड़ेगा, विच पुट्स अ स्ट्रेन
on the ecosystem, resulting in extinction of plants and animal species. This loss is known as biodiversity loss. तो उस छोटे से बंच ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर जब इतना प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनिमल स्पीशीज के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा. वो होगा उनकी एक्सटिंक्शन का, उनके खात्मे का. और यही है आपका बायोडायवर्सिटी लॉस. आफ्टर इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स caused rapid industrialization, growing townships and urbanization. तो हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, आई होप हमने इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, आई होप कि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बातें याद हो, विच वॉज हेल्ड इन 1991. उसके बाद इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना तेजी से बढ़ा, अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली, नई नई टाउनशिप्स बनी, नई नई सिटीज एस्टेब्लिश हुई इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी लॉस हमें देखने को मिला. दिस हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड बायोडायवर्सिटी साइट्स. कि जहां पर कुछ हैबिटेट्स थे या जो बायोडायवर्सिटी साइट्स थी पहले, जहां पर लोग जाया करते थे, आज शायद वहां पर टाउनशिप्स बन चुकी हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन चुके हैं और बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी हमें लॉस देखने को मिलता है. पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड in the country is only 0.08 hectare against the requirement of 0.47 hectare. आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा की है और एक्चुअल कितना ज्यादा कम है. टू मीट the basic needs, resulting in an excess feeling of about 15 million cubic meter forest, resulting in loss of habitats for animals and wildlife. कि जितने फॉरेस्ट की हमको जरूरत है उतने फॉरेस्ट हमारे पास अब नहीं बचे हैं, जिससे हम उन हैबिटेट्स को, उस वाइल्ड लाइफ को हम सेव करके रख सकें. तो बहुत ही बड़ा एक डेंजर है ये वाइल्ड लाइफ के लिए, हैबिटेट्स के लिए. व्हेन फॉरेस्ट डिक्लाइन और व्हेन ट्रीज आर कट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड अवे आउट ऑफ द सॉइल. कि सॉइल में से जो एसेंशियल मिनरल्स है, जो एलिमेंट्स है, वो अपने आप ही वॉश अवे हो जाते हैं और इसी चीज को हम नाम देते हैं सॉइल इरोजन का. कि अगर उस लैंड पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, ग्रीनरी नहीं होगी, तो वहां पर ऑटोमेटिकली सॉइल में से मिनरल्स और जितने भी न्यूट्रिशन एलिमेंट है वो सब अपने आप ही धीरे धीरे उस सॉइल से खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वही सॉइल आपकी लूज हो जाएगी, बहुत ढीली पड़ जाएगी और जिसे हम नाम देते हैं सॉइल इरोजन का. सॉइल इरोजन कॉजेज एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट लाइफ. वही कि बंजर जमीन तो डेजर्ट बन जाती है और जिसकी वजह से उस हैबिटेट में रहने वाली जितनी भी स्पीशीज हैं लगभग सभी खत्म हो जाती हैं. एंड द एक्सटेंशन ऑफ सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो एक
फॉरेस्ट में बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके बहुत बड़े बड़े एनिमल्स तक सबकी लाइफ उसी हैबिटेट के ऊपर है। अगर आप वहां से जंगल ही साफ कर देंगे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो शायद ये सारी स्पीशीज हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले। एंड अल्टीमेटली वही कि उससे लॉस हमारा ही है, एनवायरमेंट का ही है, और हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को यहां पर डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं। सो विच इज नॉट अ वेरी गुड सिंबल एट ऑल। So let us cover one more topic, guys. What are the causes or factors of environment degradation? कि हमारे बेसिकली क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ये एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है। देयर आर so many factors which can lead to the problem of environmental degradation. So many big issues. Now these are, पहला, high growth rate of population. This is the rate, guys, not road. High growth rate of population. इस environment degradation के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है और सबसे कॉमन रीजन है, जो शायद सभी को मालूम है, वो है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अगर हमें इन सारी चीजों को ठीक करना है तो सबसे पहले पॉपुलेशन की ग्रोथ कंट्रोल में आनी चाहिए। द हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि भाई पर हेड अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड है। पॉपुलेशन ग्रोज एट अबाउट 2% annually in India. It increases pressure on land and other natural resources. तो प्रेशर तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और वही बढ़ता हुआ प्रेशर ना सिर्फ रिसोर्सेज की क्वालिटी को कम कर रहा है, लेकिन उनकी क्वांटिटी को भी साइड बाय साइड खत्म करता जा रहा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस इज मोर देन देयर रीजनरेशन। ये जो रिसोर्सेस की एक्सट्रैक्शन है, यानी कि जिस स्पीड से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है उस स्पीड से जिस स्पीड में आपकी रिसोर्सेस जनरेट होंगी। ये वही बड़ी नॉमिनल सी बात कि कई मिलियन और ट्रिलियंस ईयर के बाद हमारे अर्थ में क्रूड ऑयल इकट्ठा हुआ, जिससे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह बनाते हैं। ह्यूमंस ने क्रूड ऑयल को इस्तेमाल करना एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कब स्टार्ट किया? इन द लेट 17th सेंचुरी, कि जब पता चला कि हां हम क्रूड ऑयल को एज सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो धीरे धीरे फिर इंजन्स डेवलप हुए। तो अगर मैं ये वाली चीज बोलूं कि हमने क्रूड ऑयल को एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, जब हर किसी के लिए उसको यूज करना एक्सेसिबल हुआ, वो शायद लगभग 100-150 साल से हुआ। कि पिछले लगभग 100 इयर्स में, स्पेशली 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, जब मोटर व्हीकल्स लोगों के लिए एक्सेसिबल हुए, अफोर्डेबल हुए, तब क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा हुई। तो 20th सेंचुरी पूरी निकल गई और 21st सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में अभी हम हैं, और अभी से ही हमारी थ्योरीज ये कहती है कि अर्थ में प्रेजेंट कंजम्पशन को देखते हुए शायद 40 से 50 साल का ही क्रूड ऑयल बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कई मिलियन और ट्रिलियंस ईयर की रिफाइनिंग के बाद जो अर्थ में क्रूड ऑयल इकट्ठा हुआ था, उसे हम लोगों ने सिर्फ कितने साल यूटिलाइज किया? 100 साल से करते आ रहे हैं और 50 साल कर पाएंगे।
लगभग 150 से पौने 200 साल। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि रिसोर्सेस कितने लिमिटेड हैं और उनको जो यूज करने वाले हैं वो बहुत सारे। अब ये टाइम से पहले एक्सटिंक्ट होगा, टाइम से पहले खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें जो जितना टाइम वो रीजेनरेट करने में लगा रही है उससे कई ज्यादा स्पीड पे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रूड ऑयल उसका बेस्ट एग्जांपल। द सिचुएशन विल बिकम वर्स इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट कंट्रोल्ड। अगर ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल ना किया गया तो सिचुएशन कितनी ज्यादा वर्स हो जाएगी ये हम सोच भी नहीं सकते। देन लास्ट पॉइंट हमारा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन अगर बढ़ता जाएगा, अगर अर्बनाइजेशन और ज्यादा होता जाएगा तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, रिसोर्सेज की कमी, कितनी सारी चीजें होंगी। As population in urban areas is increasing, migration of people from rural to urban areas makes the number bigger. अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स किसी सिटी में रह के वीडियोस को देख रहे हैं या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे हैं, तो उन्हें पता होगा कि माइग्रेशन कितना बड़ा इश्यू है। रोज एक सिटी में कई हजारों लाखों लोग माइग्रेट करते हैं, आते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पर हेड अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एनवायरमेंट उससे स्पॉइल होता है, रिसोर्सेज उससे स्पॉइल होते हैं और पूरा का पूरा एनवायरमेंट बिगड़ जाता है। इट पुट्स more pressure on environmental resources as there would be more demand of human settlements, क्योंकि भाई human wants are unlimited, वो तो बढ़ती रहेंगी लेकिन resources तो limited है। townships and other civic amenities, कि अर्बनाइजेशन के साथ जो और चीजों की डिमांड बढ़ती है उसकी वजह से बर्डन और ज्यादा बढ़ जाता है। ह्यूमंस की डिमांड कितनी सारी है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें घर में रखने के लिए चाहिए, हमें पहनने के लिए ये चीज चाहिए। अब वो हर चीज अपने आप में एक रिसोर्स का यूज करके बनती है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इन सारी रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ेगी और ये टाइम से पहले खत्म होंगे, बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे और सब लोग के लिए चीज एक्सेसिबल नहीं रहेगी। इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन स्लम एरियाज। स्लम एरियाज बहुत बढ़ जाएंगे, जो कि आपको किसी ना किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़े आराम से देखने को मिल जाएगी। कॉजेज डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एयर, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, एंड वाटर, and leads to the whole environmental degradation. So basically अर्बनाइजेशन की वजह से भाई स्लम्स बढ़ेंगे, एयर की क्वालिटी कितनी ज्यादा डिक्लाइन करेगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपका वाटर, ड्रिंकेबल वाटर वो अवेलेबल नहीं रहेगा आपके पास। तो ये अर्बनाइजेशन को अगर आपने ठीक से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं किया तो ये एक इतना बड़ा इश्यू बन सकता है, और आई शुड यूज द टर्म बन चुका है बहुत बड़ी बड़ी स्लम्स की वजह से। तो आज की वीडियो के लिए गाइस हम इतना ही रखते हैं। विल टॉक अबाउट मोर कॉजेस, मोर फैक्टर्स which leads to environment degradation in our next video. Till then, keep revising this topic. I know it is related to science, but yes, it is a part of economics as well, because ultimately इससे आप ही की economy affect होती है. Fine. So till then, keep revising, study hard, take care of yourself. We'll catch you soon in the next video. Thank you so much, guys.